let's do it. And we are going to start our graphs of the kinematics. Speed, velocity, acceleration के बाद हमारे graphs of kinematics start होते हैं. ठीक है बेटा, बहुत तवज्जो से सुनेंगे इसको, बहुत ही गौर से. डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है मेरे dt ग्राफ कहलाता है. डिस्टेंस के लिए d और टाइम के लिए t. डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज सिंबल s, कंफ्यूज ना होइएगा. डिस्प्लेसमेंट इज s, distance is d. Remember that when we talk about the graph, so we must be able to understand the formation of the lines. Generally in our graph we have 4 different types of lines mentioned in front of you. For that, for understanding these lines, you must be able to understand gradient from the mathematics. Gradient in the mathematics is known as the slope या steepness of a line. What is it called? Slope or the steepness of a line. किसी भी लाइन की चढ़ाई या उतराई. Steepness or the slope. ठीक है? Remember that gradient in the distance time graph represents the speed. Speed का symbol भी v ही होता है. If we talk about velocity, उसके symbol में v पर arrow होता है. Okay, velocity is a vector quantity and speed is just a scalar quantity. Okay students, moving further, इससे मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो we have 4 different type of lines, 1, 2, 3 and 4. ठीक है बेटा, गौर से देखेंगे अगर तो सबसे पहले we are going to study about a horizontal line. Can I call this as a horizontal line? So answer is yes, क्योंकि ये लेटी हुई लाइन है, इसमें कोई स्टीपनेस नहीं है. जिस लाइन में कोई स्टीपनेस नहीं होती उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. और बिकॉज इट हैज नो स्टीपनेस तो इसका मतलब इसका ग्रेडियंट भी क्या होगा? 0. द सिंबल दैट वी यूज फॉर द ग्रेडियंट इज m. So if there is no gradient, मतलब no m, so it is 0, and the gradient represents what? Gradient represents the speed. Hence, if the gradient is 0, the speed is 0. So what do we conclude from this? A horizontal line has 0 gradient. That's why the speed will also be gradient 0. ठीक है? Horizontal line का कोई gradient नहीं होता. Remember that. Then we have a vertical line. ये क्या vertical line से ज्यादा कोई line steep हो सकती है? Answer is no. नहीं हो सकती. It is the most steep line you will ever see. That is why its gradient is infinity. मतलब इसकी speed भी infinity हो. If there is anything that you have not understood from these 2 lines, you can write that in the meeting chat, beta. For the third one, this, can you see the right corner of the line is at the top of the graph? Am I right? The right corner of the line is at the top of the graph. तो अगर condition कैसी हो? Top right. इसको क्या कहते हैं? Generally अपनी आसानी के लिए बेटे हम इसको कहते हैं the condition is top right. अगर right corner is going at the top of your graph, then the gradient obtained will always be positive. Top right, positive. Same goes here. If the top right is positive, then bottom right is negative. If the gradient is positive, मतलब speed is positive. If the gradient is negative, तो means is negative. और negative of speed is called deceleration. मतलब ऐसा deceleration में होगा भाई. ठीक है? ये straight line जैसा कोई bend नहीं कर रही. ये भी. So all of these lines are said to be uniform lines. क्या कहते हैं इनको हम? These are lines uniform. Uniform is the physical name. मतलब हमारे physics subject में आने वाला name है. So that's why it is also known as the constant. तो uniform कहें या constant कहें, both the things are exactly the same. I hope this is making sense and you all are understanding very well. किसी ने कुछ पूछना होगा तो फौरन मुझसे मीटिंग चैट में पूछते जाइए बेटा, and I'll try to answer you, all of you people right away. Okay? थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ेंगे. मजीद आगे बढ़ते हैं. So what do we have?
अब इन लाइंस के लिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो सिनेरियोज आना शुरू हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। ठीक है, देखते हैं कि कैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आता है। On your left side we have number 1. Here is the graph. Can you see any line in this graph? मैं आपको बता दूं, मैंने डिस्टेंस और टाइम की जो लाइन है वो ब्लैक कलर से ड्रॉ की है। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, मोबाइल पर रिपीट भी करवा दूंगा आपको लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये जो लाइन है डिस्टेंस और टाइम की लाइन है इन द ब्लैक कलर। सो व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व हियर इज कि मैंने अपनी जर्नी की लाइन कहां ड्रॉ की है, ब्लैक के ऊपर कौन से को बिलोंग कर रहा है। व्हाट वी कैन सी इज हमारे पास हॉरिजॉन्टल, अगर मैं टाइम की लाइन देखता हूं उस पर रेड मार्किंग हुई है। कैन यू सी अ रेड लाइन ऑन द ब्लैक लाइन? है ना भाई, रेड लाइन हुई है ना, इसका मतलब मेरी जर्नी की लाइन ये यहाँ ड्रॉ हुई है। सबसे पहले, इज इट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंट लाइन? कैसी लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लैंट? इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन, कहां है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही। हॉरिजॉन्टल लाइन हैज जीरो ग्रेडियंट नंबर 3 में, so that's why its speed will also be zero, hence velocity is 0 meter per second. ठीक है, there is no distance which has been covered over the time. टाइम पास होता गया, टाइम आगे बढ़ता गया, लेकिन किसी किस्म की कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। 0 मीटर पर थी, 0 मीटर पर ही है। दैट इज व्हाई वी से दैट देयर इज 0 डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, या भी दैट इज व्हाई इट इज एट रेस्ट। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 इज राइट हैंड फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ जो जर्नी की लाइन है, यू कैन इजीली सी ये 20 मीटर्स पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई है, राइट और रॉन्ग? एज यू कैन सी a horizontal line has been drawn on 20. इसका मतलब ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मैंने सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठा, जब मैं जीरो टाइम अपना चेक किया, ये तभी 20 मीटर पर थी। फिर शाम को 5 घंटे के बाद जब मैं चेक किया तब भी 20 मीटर पे थी। फिर रात को 10 बजे चेक किया, मजीद 5 घंटे बाद, तब भी इतने बजे थी। फिर 15 घंटे बाद चेक किया, तब भी इतने बजे थी। या सेकंड्स कह रहे हैं आप भले इनको, इसका डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ ओवर द टाइम। इसका मतलब ये लाइन भी रेस्ट पर है, स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड एट रेस्ट। लेकिन ये ऊपर क्यों है, इसका मतलब इट इज फार फ्रॉम द ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई ग्लास, कोई टेबल, कोई भी चीज रखी हुई है और वो सुबह से लेकर शाम तक एक जगह पे रखी हुई है, ये उसका केस रहा हुआ है। या पार्किंग में आपकी कार 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे सुबह से शाम तक खड़ी हुई है। ओके, सो इन दिस केस स्पीड इज 0 एंड एट रेस्ट। तो आपने दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन की क्लासिफिकेशन समझ ली, समझ में आ गया। नंबर 3, number 3 is number 3 is a slant line which has been drawn like this. पहले तो हमने ऐसी लाइन कहाँ देखी मैथमेटिक्स में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफ में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब when two quantities increase at the same rate। ठीक है, अब इट्स अ स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन है, जब एक स्लैंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं बेटा, जब एक स्लैंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका राइट कॉर्नर किस तरफ है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो गौर से देखा, द राइट कॉर्नर इज गोइंग एट द टॉप। और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, टॉप राइट, पॉजिटिव ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव है तो मतलब स्पीड क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए मेरी बात, अब समझिएगा मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। पॉजिटिव है, बिल्कुल है, क्योंकि टॉप राइट है। लेकिन मैंने कहा है एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसकी। क्या कहा मैंने, एक्सेलरेशन क्या है इसकी, 0 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। ऐसे ही पढ़ा ना भाई। लेट्स सपोज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए पहले 5 सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ,
फिर 10 सेकंड में 20 मीटर, फिर 15 सेकंड में 30 मीटर। कैन आई से कि हर सेकंड में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हुआ है ना भाई? व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग दैट इफ एवरी सेकंड या एवरी 5 सेकंड 10 meters covered by the car, तो कहना है से कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है या नहीं कह सकता है ना? हर सेकंड में 10 10 10 10 मीटर हो रहे हैं ना, तो ये सीधी कांस्टेंट लाइन ना, मैंने इसके बारे में आपको लिखा भी था कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट लाइन होती है मेरी। तो यहाँ से मिलने वाली स्पीड कौन सी होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म है, ये लिखा है यूनिफॉर्म। कौन है यूनिफॉर्म? मेरी स्पीड या वेलोसिटी जो भी है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी होती है, इसका मतलब नो चेंज इन द स्पीड। नो चेंज इन द स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द स्पीड। ये बात अगर समझ में नहीं आएगी तो प्लीज मुझे मीटिंग चैट में इसके बारे में बता दिएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही। मजीद आगे आगे नंबर 4 पर, मजीद आगे आगे नंबर 4 पर। एंड नंबर 4 इज सेइंग दैट, and number 4 is saying that the line is coming down, इसका राइट कॉर्नर बॉटम की तरफ है। सही है या नहीं? तो बॉटम राइट मींस नेगेटिव, and because it is a straight line indicates कि ये यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट डिक्रीज है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली हर से 10 मीटर करीब आती जा रही है, मतलब कॉन्स्टेंटली हो रही है। So that's why it is uniform speed but it is negative, मतलब कम हो रही है। सही है, हर सेकेंड इतना डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अब कांस्टेंट के बाद हमारे पास आ गए कर्व लाइंस। कैन यू सी दीज लाइंस? ये कर्व लाइंस हैं, कहीं से भी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन कौन से ग्राफ में है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डी मतलब डिस्टेंस, दोनों का मतलब एक ही है ग्राफ के मतलब से। ग्राफ में आपको डायरेक्शन वाला मामला कोई इतना परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ग्राफ में ये वाला मामला आपको इतना परेशान नहीं करेगा। सर कांस्टेंट का मतलब? नहीं नहीं, कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं है, जीरो अलग है, कांस्टेंट अलग है। यस, फोर्थ वन इज द रिवर्स बेटे, मोबाइल बिल्कुल सही। कांस्टेंट मतलब बेटे एक जैसा, जिसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं वॉक कर रहा हूँ और हर वॉक करने के हर एक स्टेप मेरा वन फीट का है, तो 1 फीट के सारे स्टेप्स हैं और हर सेकंड में मैं 1 फीट कवर करते जा रहा हूँ। हर सेकंड में मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है वो सेम है, तो इसमें मेरा स्पीड क्या होगी? मेरी कांस्टेंट रहेगी। ओके रीजा बेटा? हाँ मोबाइल बेटे बिल्कुल सही कहा, फोर्थ वन इज द रिवर्स, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। सर और ना फोर्थ में ना डीएसेलरेशन जीरो होगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, सॉरी नेगेटिव में। एक्सीलेंट, जब भी यूनिफॉर्म की लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन जीरो होगी। कब? डिस्टेंस टाइम का। ठीक हो गया, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो अब ये भी यूनिफॉर्म है और तो इसमें डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी, एज यू जस्ट सेड। क्लियर हो गया? नंबर 5 पे आते हैं बेटे। एज यू कैन सी द लाइन इज बेंडिंग अपवर्ड्स। ऊपर की तरफ कौन है? वाई एक्सिस की तरफ बेंड कर रही है ना, ऐसे बेंड कर रही है। वाई एक्सिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। कहना है से कि हर सेकंड में, जरा और कीजिएगा, बहुत जरूरी है, इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये शुरू के 5 सेकंड, फिर 10, फिर 15 और 5 पे रीडिंग आ रही है ये वाली, और लेट सपोज ये मेरा है 10 और ये 20 और ये 30। इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स the point that I am getting on the displacement is around 3, maximum 3 होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। ये 2.5 कह सकते हैं इसको, क्योंकि हाफ के भी हाफ में आ रहा है, तकरीबन तकरीबन 2.5। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब 10 सेकंड जब कंप्लीट हुए तो ये कितना हो गया? ऑलमोस्ट 7.5 सेकंड्स, 7.5 मीटर्स। मतलब कि पहले 5 सेकंड में कितना इंक्रीज हुआ था? सिर्फ 2.5। इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स इट इंक्रीजेस बाय 2.5 meters. In the next 5 seconds, it increases by how many meters? 5 meters. 2.5 से 7.5 हो गया, मतलब इक्वल चेंज नहीं हो रहा। पहले 2.5 इंक्रीज हुआ, 5 इंक्रीज हुआ, एंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड जैसे 15 सेकेंड्स कंप्लीट हुए तो अब मेरी रीडिंग कुछ आ रही है यहाँ, ऑलमोस्ट 22.5। ऑलराइट, अब कितना इंक्रीज हुआ नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में? कम से कम 15। कितना इंक्रीज हो गया यहाँ से यहाँ तक में? ये कम से कम 15। ऑलराइट,
ठीक है, तो इट मींस, और यहाँ से यहाँ तक में कितना इंक्रीज हुआ था 5, और यहाँ से यहाँ तक में कितना इंक्रीज हुआ था 2.5. तो एवरी 5 सेकेंड द स्पीड इज चेंजिंग. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, यहाँ डिस्टेंस कम कवर हुआ था, फिर और ज्यादा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, है ना. तो आई विल से इन एवरी 5 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज इंक्रीजिंग. It means it indicates that it's non-uniform. Line curved है, non-uniform. It means more distance covered in short interval. और 5 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, more distance covered. It indicates that कि मेरी जो कार है वो क्या कर रही है, एक्सिलरेट कर रही है. पहले वो कम डिस्टेंस कवर कर रही थी और अब वो मेरी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, उतने ही 5 सेकंड्स में. ओके. So what is concluded from this graph, that it's an acceleration graph while keeping the displacement and time. It's a high order question, so you need to understand graph thoroughly. 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है कम से कम इसमें. ये all these 4 elements must be cleared by each and every one of you. Then you will be able to write the answer and identify the graph in the MCQ paper or in the theory paper. ओके हो गया. क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की तरफ बैंड कर रहा था तो हमने इसको कहा कि एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन टॉप राइट का तो है तो पॉजिटिव. अब आते हैं 6th में. ये किस तरफ बैंड कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की तरफ तो बैंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा. इट इज बैंडिंग टुवर्ड्स द टाइम. ऐसा ही है ना. तो इन शॉर्ट आई विल से दैट द राइट कॉर्नर ऑफ द लाइन इज गोइंग अप. तो है तो ये पॉजिटिव ही because it's top right, but the line is bending, then it is by non-uniform. ठीक है, क्या हो रहा है जरा गौर कीजिएगा. in the first second, बल्कि फर्स्ट नहीं, इसको 5 10 15 करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. 1 सेकेंड बस. वही 5 10 15 और यहाँ आगे कितना हो गया 20. ओके. लेट्स सपोज बोलो 2.5 सेकेंड. ये मेरा मिडिल में है ना बिल्कुल. तो 2.5 सेकेंड बेटे कहाँ आ रहा है, ऑलमोस्ट 15 पर, तकरीबन हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं. लेट्स सपोज 16 पे आ रहा है. कौन, 2.5 सेकेंड है ना, ऐसा है. और 5 सेकेंड पे कितना हो गया बेटा, दिस इज ना 5 सेकेंड. और अब रीडिंग मेरी आ रही है ऑलमोस्ट, अगर मैं गौर करेंगे तेरी 22 के करीब. तो शुरू के 2.5 सेकेंड में चीज कितना हुआ था, 16 थी डिस्टेंस कवर हुआ, 16 मीटर. और बाकी के 2.5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, जस्ट 22 माइनस 16 कितना गया 6 मीटर. तो पहले तो 16 मीटर कवर हुआ था और अब सिर्फ 6 मीटर कवर हुआ है. और यही हम देखते हैं कि 10 सेकेंड्स में अब तो और कम रह गया. लेट्स सपोज ये 28 आ रही है वैल्यू. तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ 6 सेकेंड, सॉरी 6 मीटर. 28 माइनस 2 कितना 5 सेकेंड में 2.5 नहीं और 15. सर आपकी ना वॉइस लैग करी है, फिर से समझा देंगे. मेरे एंड पे अच्छा, आपकी मैं वॉइस दोबारा लैग कर रिपीट रही कर, है. अच्छा मैं दोबारा समझाता हूँ, नो प्रॉब्लम. 2 मिनट का बस, मैं अपना इंटरनेट जरा देखूं. 1 सेकंड रुको. हाँ भाई, if I am audible clearly so please let me know. यस सर यू मेरी आर. आवाज आ रही? जी ओके जी जी जी, अब ग्रेट. सही होगी. चलो ग्रेट. तो बेटा मैं कह था कि 0 पर तो मेरी लाइन 0 पर थी. फिर मैंने कहा 2.5 सेकेंड्स पर देखा तो इट इज कमिंग अराउंड 16. तो शुरू के 2.5 सेकेंड में 16 मीटर हुआ कवर. फिर उसके मजीद 2.5 सेकेंड और किया तो 5 हो गया और तब पहुंच गया ऑलमोस्ट 22 पर. एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई पहले डिस्टेंस 16 मीटर कवर हुआ था और अभी डिस्टेंस कितना कवर हुआ, जस्ट 6. 22 तक पहुंचा, 16 से 22 पर सिर्फ 6 मीटर आ गया. तो इसका मतलब हर 2.5 सेकंड में डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो ज्यादा होने के बजाय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है.
इट मींस ये मेरे क्या हो रही है, डिसेलरेशन हो रही है। क्या कराएंगे इसको, डिसेलरेशन। और क्योंकि लाइन कर्व है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म, और क्योंकि ये टॉप राइट है इसलिए पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म है। मींस पॉजिटिवली डिसेलरेशन हो रही है, मतलब लाइन स्पीड उसकी 0 से कम पे नहीं गई, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं गया। मतलब अगर कार आगे ट्रेवल कर रही थी तो वो आगे ही जा रही है, ऐसा नहीं कि पीछे आ गई हो। इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव का। ओके हो गया। तो और यहाँ पर आके तो रेस्ट पे आ गई। ये रेस्ट क्या है ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। सही हो गया। इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का वेट करेंगे। सर लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव नहीं लिखें, हम सिर्फ ये लिख दें नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, तब भी सही रहेगा ना आंसर? बिल्कुल सही रहेगा। मैंने पॉजिटिव से डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्शन भी सकती है ना इसमें, उसलिए बताया। सही है। अच्छा जी, अब क्या आता है आपके पास। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ही है, लेकिन अब लाइन कहाँ कर्व कर रही है, नीचे की तरफ, बॉटम राइट हो रही है। क्या हो रही है, बॉटम राइट। ये कैसी बात है, बॉटम राइट का मतलब नेगेटिव हो रही है। और क्योंकि कर्व भी हो रही है लाइन, सो वी कॉल सच थिंग्स एज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म है और नेगेटिवली इंक्रीज है। इंक्रीज क्यों है भाई, अब अजीब सी बात है सर, ये इंक्रीज कैसे हो गया, है ना। लॉजिकल नहीं लग रहा सुनने में, अगर हम पढ़ते हैं ये लॉजिकल नहीं लग रहा। हमने कहा भाई ये मेरे 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड, ऐसा ही है। बेटा जरा गौर से देखेंगे अगर, तो 5 सेकेंड पे ऑलमोस्ट 24 आई होगी, कम हो गया, बैंड हो रही है ना ये, है ना। अगर हम इसको ड्रॉ भी करते हैं यहाँ से तो ये तकरीबन तकरीबन 1 पॉइंट कम हो गया। लेट सपोज 24 हो गई। हाँ, 5 सेकेंड में इट इज एट 24। और 10 सेकेंड पे कहाँ रह गई बेटा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 21। तो पहले 5 सेकेंड में सिर्फ 1 यूनिट कम हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना यूनिट कम हो गए, ऑलमोस्ट 3.5। और उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकेंड में तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर गौर से देखें, अगर गौर से देखें तो आपका डिस्टेंस तो कवर हो रहा है ना भाई, डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव हो रही है। क्यों, डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगर ये नहीं भी आया तो इसकी परवाह नहीं करना, आगे बहुत सारी चीजों में रिपीट होगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारी जगह पे आने वाला है इंशाल्लाह। इसे बेटा एक्सेलरेशन तो नहीं कह सकते, इसे हम डिसेलरेट ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ना ये नेगेटिवली है ना बेसिकली, इस वजह से। सर ये ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन कैसे, नेगेटिव डायरेक्शन कैसे, ये कैसे पता क्योंकि चलेगा? पहले हमसे 25 सेंटीमीटर दूर थी, अब 20 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 0। क्या हो रही है, करीब आ रही है ना, जाने के बजाय उल्टी वापस आ रही है ना। यस। अच्छा अच्छा, तो वो 25 से 0 पे आ रही है। हाँ, तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिवली इंक्रीजिंग, कि गाड़ी वापस मेरी तरफ आ रही है, मैंने तो कार को आगे फेंका था, वो वापस आना शुरू हो गई, तो नेगेटिवली इंक्रीज हो गया ना। समझ गए बात। अब आपके पास आते हैं बेटा उसके बाद कौन से ग्राफ्स, वीटी ग्राफ्स। वीटी ग्राफ्स हमारे यानी कि वेलोसिटी टाइम के ग्राफ। आपने वीटी ग्राफ्स को देख के परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे वहां पर ग्रेडियंट मेरी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसे ग्रेडियंट यहाँ मेरी किस चीज का रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ तक कोई बात मुश्किल तो नहीं है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब भी इस क्वेश्चन में आएगा, whenever you are going to have total distance traveled in this question, so it will be known as the area under the graph. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम का चेंज निकाल रहे हैं इसमें। लेकिन जब भी आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कहेंगे, while giving you a speed time या velocity time graph, so what you are going to do, you are going to apply the formula to calculate the area of that shape. The area of that shape will be equal to the distance traveled. ओके हो गया। अब इसकी आप ये शेप्स देखना स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से।
हाँ जी, नंबर 1 और नंबर 2 को पहले गौर से बहुत अच्छे से देख लीजिए, पहले इनको रिव्यू कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुकून से बिल्कुल। The shape of this graph is exactly the same as the one we had in distance time. The shape of this graph, इसकी लाइन भी कहाँ है, ये देखो और से कहाँ ड्रॉ की हुई हमने, एक्सेस पे ड्रॉ की हुई है, लेकिन इसका मतलब यहाँ इसकी स्पीड क्या है भाई, लेट्स सपोज ये मेरी स्पीड 10, ये मेरी स्पीड 20, तो यहाँ पे स्पीड क्या है, 0, है ना। इफ द स्पीड इज 0 थ्रू आउट द टाइम, कि मेरा टाइम चेंज हो रहा है, लेट्स सपोज ये मेरे 5 सेकेंड्स, then 10 seconds, then 15 seconds, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब माई कार इज विद द 0 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एट रेस्ट। और वही अगर रेस्ट पे स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आया तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। क्यों होगी? बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज 0, ग्रेडियंट 0, एक्सेलरेशन 0। ओके हो गया। नंबर 2, नंबर 2 says the uniformly increase। नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज। ऐसा क्यों? स्ट्रेट लाइन, जो लाइन कर्व नहीं होती वो हमेशा यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। दूसरी बात, मेरे शुरू के 5 सेकंड में स्पीड थी 10, फिर 10 सेकंड में स्पीड हो गई 20, और फिर 15 सेकंड्स में स्पीड कितनी हो गई 30। कैन आई से एवरी सेकंड मेरे पास इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा। 5 सेकंड में 10 हुई, 20 में 10 में 20 हो गया, 15 सेकंड में 30 हो गया। तो अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, लेट्स सपोज पूरे 0 से लेके 15 सेकंड तक, तो 15 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, और 0 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो मेरे आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई? सही है। लेकिन अगर मैं 10 से 15 सेकंड के लिए करूंगा, सिर्फ कितने सेकंड के लिए, 10 से 15, तो 10 से 15 में कितने सेकंड है, 5 सेकंड बेटा, है ना। तो टाइम मेरा आ गया 5 सेकंड, और 15 सेकंड पे स्पीड थी 30, और कितना 20 सेकंड्स पर स्पीड, 10 सेकंड्स पर स्पीड है 20। कितना बच गया बेटा, 30 माइनस 20, 10 अपॉन 5, कैंसिल किया, क्या आंसर आया 2। आपने और किया, स्ट्रेट लाइन पे आपने, हमने दो डिफरेंट जगह पर ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट की, द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट लगाएं, एक्सेलरेशन मालूम करें, both the times we got the same acceleration। तो जब स्ट्रेट लाइन होगी तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम, मतलब कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म, मतलब विच इज नॉट चेंजिंग। सही है। मैंने क्या किया, दो डिफरेंट पॉइंट्स की एक्सेलरेशन अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाई आपको, एंड देन यू आर एबल टू डू दैट, माशाल्लाह। तो दोनों दफा हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर्स पर सेकंड ही आई है, which indicates that on a straight line when the velocity is same, or when the velocity is constantly increasing, the acceleration will be the constant। सही है, सेम एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं आई। नंबर 3 में आएंगे और ये देखेंगे, नंबर 3 में गौर से देखें तो ये मेरी वो वाली लाइन है जो when the object is at a constant distance from the observer distance टाइम में आया था। अब यहाँ किस में आ गया, वेलोसिटी टाइम में आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब नो ग्रेडियंट, जब कोई ग्रेडियंट ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्रेडियंट विल बी, the gradient will be 0, and if the gradient is 0 the acceleration will also be 0। इसका मतलब throughout the time there is no change in the velocity could be observed, there is no change in the velocity could be observed। 5 सेकंड से 10 सेकंड हो गए, then 15 सेकंड हो गए, but the speed remains same 20 meters per second। It indicates that when there is no change in the velocity, the acceleration is said to be 0 meters per second square। ठीक है, और 0 क्यों हुआ है, क्योंकि ग्रेडियंट ही 0 है।
फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन आर प्रीटी मच इजी। इनको एक बार देख लें और इनको देख कर मुझे बताएं आपको क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको प्रॉब्लम लग रहा हो। सर ये नंबर 4 कांस्टेंट डिसेलरेशन है ना? यस, बिल्कुल सही। हाँ जी, ऑल क्लियर हो गया। ये कांस्टेंट डिसेलरेशन नंबर 4 और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द नंबर 5। Positive because the right side is going up. It's a non-uniform increase and it is also positive. ठीक है, कैसे प्रूफ दिखाएं आपको? लेट सपोज शुरू के 0 सेकंड पे 0, 5 सेकंड्स पे लेट सपोज ये 10 की स्पीड और ये 20 की स्पीड। 5 सेकंड में ऑलमोस्ट ये स्पीड हो रही है कितनी? 4 के करीब, है ना? और फिर 10 सेकंड में कितनी हो गई बेटा? इट इज ऑलमोस्ट 9, ऑलमोस्ट 9। और 15 सेकंड में कितनी हो गई बेटा? ऑलमोस्ट 40, 30 सॉरी 30। तो इन 5 सेकंड में 10 से लेके 15 तक में नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज आया नहीं आया? तो दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेशन। और कौन सी एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया आपको? अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई? और अब आते हैं आपके मुश्किल वाले पार्ट पे, जिसे हम कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ ने क्या कहा था? when you get a question from a velocity time graph and they ask you to calculate the distance. So if they ask you to calculate the distance traveled by the cyclist, ये उसकी जर्नी ड्रॉ है साइकिलिस्ट की। पहले इसको रिव्यू कर लो, किस बच्चों को आता भी होगा, और चेक कर लो समझ में आ रहा है क्या किया मैंने। आई एम गोइंग टू वेट फॉर 1 मिनट ओनली। मुझे आप 1 मिनट दें, मैं आता हूँ, ठीक है? यू नीड टू कैलकुलेट जस्ट 1 मिनट। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब इस पूरे डायग्राम का एरिया अंडर द ग्राफ लगाना है। एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, पास समझना ताकि समझ में आ जाए। ये शेप या फिर ये शेप, ठीक है, या फिर both of them are said to be ट्रेपीजियम। सही है? ट्रेपीजियम में जो हाइट होती है, एक तो हाइट हमेशा किसी भी लाइन में किसी भी जगह पर तब कहलाएगी व्हेन इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है? इसमें जो हाइट होती है ना,
वो the line that connects two parallel lines. कौन है हाइट? वो लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कनेक्ट करे। मतलब अब पैरेलल कौन सी है भाई? गौर से देखो, ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल, दोनों को ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इनको कनेक्ट कौन लाइन कर रही है? ये वाली जो मैंने ग्रीन, ये मेरी हाइट। और गौर से देखें तो ये दोनों तरफ से 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, ऊपर से भी बना रही है। सेम गोज कि यहाँ भी हाइट कौन है मेरी? ये वाली लाइन, which is making what? Which is making a 90 degree at this point and at this point both. That is why it is called my height. सही है? समझ में आ रही बात? अच्छा, अब मसला पता है कहाँ आता है? जब ये दोनों डायग्राम्स आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल देने के बजाय they try to make you people fool and they give you the diagrams like this. ऐसे है ऐसे, तो भले ये हॉरिजॉन्टल दें या वर्टिकल दें, हाइट कौन होगी? द लाइन दैट जॉइंस दी टू पैरेलल लाइंस। और दो पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं ए एंड बी। सिमिलरली ए एंड बी, ए एंड बी एंड द ए एंड बी। सही है? इनको सॉल्व करने के 10 तरीके हैं। अगर एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, तो फॉर्मूला है हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एक तरीका। और दूसरा तरीका है, कभी कभी उसमें सिर्फ एक ट्रायंगल लगता है, कभी कभी दो बन जाते हैं। जैसे इस वाले में दो ट्रायंगल बन सकते हैं, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा। एरिया ऑफ पॉसिबल triangles plus area of possible triangles plus area of rectangle। तो मैंने आपको इसका एरिया कैलकुलेट करने एक और एक दो ऊपर को देख के समझ लो, ए और बी की लेंथ को प्लस करें और हाइट को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कैसे बेटे? आपको समझाया था। लेट्स सपोज ये वाली डायग्राम थी मेरी। लेट्स सपोज इसमें मैं कह रहा हूँ यार मुझे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना मुश्किल लगता है। ये लेंथ गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने इस हाइट के पैरेलल एक और हाइट ड्रॉ कर ली यहाँ पर, है ना भाई? क्या किया मैंने? एक हाइट। नाउ आई हैव 3 डिफरेंट शेप्स इन जस्ट वन ट्रेपेजियम। पहला ट्रायंगल, नंबर 2 रेक्टेंगल, नंबर 3 ट्रायंगल। तो आप इन तीनों का एरिया निकाल के प्लस करेंगे तो इस फॉर्मूले के लगाए हुए आंसर के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो अगर आप ट्रेपेजियम का ये वाला फॉर्मूला भूल जाएंगे तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। सही है? आई सजेस्ट ये फॉर्मूला ही याद रखें, सबसे आसान और जल्दी हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी आपको दिखाते हैं। हमने ये कॉपी करते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, और दोनों तरीके सॉल्व करेंगे। पहला मेथड आप अप्लाई करेंगे जिसका ट्रेपेजियम का अपना खुद का फॉर्मूला, वो क्या है? A is equals to 1/2 sum of parallel sides, मतलब 2 + 5 into height, मतलब के 2 से 2 कैंसिल और आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है एरिया। और एरिया बराबर में किसके? डिस्टेंस के। तो आप 7 सेंटीमीटर लिख लें बस, सेंटीमीटर स्क्वायर ना लगाएं बिकॉज एरिया इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। आप भले यहाँ एरिया लिखे भी नहीं, आप लिखना भले डिस्टेंस।
दूसरा ट्रायंगल में ब्रेक करने वाला काम वो भी देखना। तो पहला ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट, फिर तीसरा प्लस करके दोबारा ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, या एल इंटू बी कह लो, डब्ल्यू इंटू एच कह लो, कुछ भी कर सकते हैं, एक ही बात होता है। तो बेटा बेस कितनी थी इस वाले ट्रायंगल की, जरा गौर से देखिए, 1, इस वाले ट्रायंगल की 2, तो यहाँ बीच में कितनी रह गई 2। मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस के हिसाब से काम करती हूँ, तो ये काम आपको उल्टा लंबा भी लगेगा और मुश्किल भी लगेगा। नंबर 1 वाले की जो बेस है वो क्या है 1 और हाइट है उसकी भी 2। नंबर 2 वाले की बेस है 2 और हाइट तो उसकी ऑलरेडी है 2। नंबर 3 वाले की बेस है कितनी 2 और हाइट उसकी भी कितनी है 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आई गॉट 1 प्लस 2 टू द 4 प्लस 2, आ गया वही 7 सेंटीमीटर आंसर। इसे हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस, किसका, ट्रेपीजियम का भी। और डायरेक्टली ट्रेपीजियम अगर याद ना हो तो 3 तरह की डायग्राम्स में ब्रेक करके सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गौर से देखें ट्रेपीजियम कैसा दिया हुआ है, वर्टिकल ट्रेपीजियम दिया है। कैसा ट्रेपीजियम दिया, वर्टिकल दिया हुआ है। तो पैरेलल लाइंस कौन सी है मेरा बेटा, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली जिन पर मैंने एरो बनाना है। और हाइट कौन हो गई, द लाइन दैट कनेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। इसलिए मेरी हाइट कौन होगा, तो ये मेरी हाइट जो 90 डिग्री में आ रही है और दो पैरेलल लाइन को कनेक्ट भी कर रही है। क्या हो गया, सही है। तो हाउ मेनी शेप्स डू आई हैव हियर, पहली शेप ये ट्रायंगल, दूसरी शेप ये ट्रेपीजियम, तीसरी शेप ये रेक्टेंगल, फोर्थ एंगल ट्रायंगल। 4 शेप हो गई पूरी, 1 2 3 4। आप नीचे देखें सेम सबके फॉर्मूले भी अप्लाई किए हमने, कहाँ किए हुए, ये देखें, ये ट्रायंगल, फिर ट्रेपीजियम ये वाला, फिर रेक्टेंगल ये वाला, फिर ट्रायंगल ये वाला। और फिर क्या किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दी। बेटा इसकी बेस कितनी है, आपके साथ सॉल्व करना चला पूरा, आपके साथ सॉल्व करते हैं, 1 सेकंड बस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा पहली शेप है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का एरिया लगा लिया 1/2, बेस इज 5 ट्रायंगल की और हाइट इज 20। फिर 1/2 ट्रेपीजियम आ गया, ट्रेपीजियम में क्या करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहली पैरेलल साइड जिस पे एरो बना हुआ है इट्स हाइट इज 20 और दूसरी पैरेलल साइड पे दूसरा एरो बना हुआ है इट्स हाइट इज 30। कैसे, ये देखें, ये 20 और ये 30, और ये वाली जो लेंथ है जो कि दो पैरेलल से कनेक्ट करी है मेरी हाइट कहलाती है। और वो कहाँ से 5 से लेके 15 तक, मतलब कितना गैप आ गया 10। फिर आगे थर्ड डायग्राम जो कि मेरा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बेस बेटा इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 और एंडिंग एट 35। तो 35 माइनस 15 कितना रह गया बेटा 20। तो बेस लगा ली हमने 20 और हाइट बेटा इट इज गोइंग टिल टॉप, टॉप कितना है वो 30, तो मल्टीप्लाई बाय 30। फिर दोबारा ट्रायंगल 1/2 बेस टाइम्स हाइट। हाँ जी, बेस कितनी है बेटा 35 से 45 कितनी आ गई बेटा 10 और हाइट तो वही है 30, ठीक है। अब इनको सिग्निफाई कर लेते हैं मेरे भाई, 2 1s are 2, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10। ओके हो गया, 10 5s आ गया 50, 20 प्लस 3 की 30 कितना होगा 50, 50 5s आ 250, 2 3 6 और आगे 2 zeros और 5 से 15 और आगे उसका 30 का एक, सही है भाई। तो 600 प्लस 300 900 900 प्लस 1050,
ये बेटा आपका आ गया ट्रेपीजियम का मिलाकर पूरी जर्नी का 0 सेकंड से लेके 45 सेकंड्स तक का आंसर ट्रेवलिंग विच हैज बीन कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट या मोटर या साइक्लिस्ट या मोटरिस्ट जो भी है 1050. This is the total distance traveled by them. किसको समझ में नहीं आया? If you have not understood, so please write it to me in the meeting chat. और अगर समझ में आ गया है, so I am going to share these notes with all of you people in your meeting chat. कहाँ गया फिजिक्स का ग्रुप 4 हमारा? फिजिक्स ग्रुप 4. डन. वहां आपके पास नोट्स आ गए. पीछे वाले नोट्स ऑलरेडी शेयर किए हुए. आई विल शेयर इन पर्सन. जो बच्चों ने पहले क्लासेस नहीं दी हुई, आई विल शेयर दोस विद ऑल ऑफ यू पीपल. अगर ये आपको समझ में आ चुका है, so now the last but not the least, we are moving to the representation of a vector. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर का क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मींस वेक्टर को किस तरह से पेश किया जाए या दिखाया जाए. एक बात हमेशा याद रखिए, बात कर लो कि हमें जब भी हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सो वी नीड टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली. बहुत ही एहतियात के साथ हमें अपनी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होता है. रीजन, क्वेश्चन यहाँ भी कह रहे हैं साइक्लिस्ट गोज फ्रॉम ए टू बी इन 100 किलोमीटर्स. आ जाएंगे एक बार में. अगर बैठ सकते हो बैठ जाओ, मुझसे मत पूछो. टू द ईस्ट and then B to C 50 kilometers to the north. अगर if you can sit, so you may. अगर जल्दी जाना है तो देख लो. Calculate the resultant and the direction of the cyclist. आ जा अभी आ पढ़ा दो. Mention the scale used. अब सुनिएगा बहुत ही गौर से. साइकिलिस्ट जब ए से बी पे गया तो इट टुक 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. अब मैं अपने पेपर पर 100 किलोमीटर्स की लाइन तो कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मुझे मैप और स्केल वाला काम करना पड़ेगा जो मैथ्स में करते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब वो यहाँ था, इधर गया कितना दूर, 100 किलोमीटर दूर गया. ठीक है. फिर हमें रिजल्टेंट भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है, मेंशन द स्केल यूज भी करना है. रिमेंबर दैट मेंशन द स्केल यूज में आप अपना पेपर देख के खुद अपनी मर्जी से स्केल सेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये 1 से 2 मार्क्स का पार्ट आएगा स्केल वाला. मैंने कहा भाई मैप में फॉर एग्जाम्पल जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो एक्चुअल के 10 किलोमीटर के बराबर है. ये मैंने खुद लिखा, आप चाहे तो 20 या 5 किलोमीटर भी ले सकते हैं. जितनी लंबी लाइन आप पेपर ड्रॉ कर सकें, जितने सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप पेज पे लाइन ड्रॉ करते हैं. आ जाओ. ठीक है. तो जितनी लंबी आप लाइन ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से आपने अपनी रीडिंग ले लेनी है. फर्दर इफ आई नीड टू नो कि मेरे पास तो 100 किलोमीटर थे ना, तो वो कितने मीटर सेंटीमीटर बनेंगे. तो 100 किलोमीटर मुझे पता ही नहीं. ये वाला काम हम ऑलरेडी मैप स्केल्स में मैथमेटिक्स में कर चुके हैं, बड़ा आसान काम है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मालूम हुआ कि जो 100 है वो 10 मतलब डिवाइड किया तो इसका मतलब कितना आया, 10 सेंटीमीटर. क्या 100 किलोमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है भाई. ठीक है. ठीक हो गया बात. सही है. 100 किलोमीटर किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर. आंसर ही 10 आ रहा है ना. फिर मेरे पास उन्होंने कहा कि बी टू सी जब वो गया तो 50 किलोमीटर की रेंज थी, तो हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया सेम उसी तरीके से कि 1 सेंटीमीटर का 10 किलोमीटर के बराबर है. तो हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 50 किलोमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई गया तो मालूम हुआ वो भी 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा. ठीक है. पहले गए ईस्ट और फिर गए नॉर्थ. अब मैंने लिया स्केल. कैसे ड्रॉ करते हैं जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, बहुत गौर से. बस ये लास्ट काम है, फिर इस क्लास को आज यहीं रोकेंगे.
मेरे पास मैंने लिया सबसे पहले, कहाँ गया मैं, ईस्ट। कहाँ गया, ईस्ट। कितने सेंटीमीटर बेटा, मैंने स्केल रखा अपना, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू द ईस्ट। ये आ गया 10 सेंटीमीटर टू द ईस्ट। सही है। मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, ईस्ट के लिए एरो शो करूंगा और 100 किलोमीटर ही लिखूंगा। और फिर वो गया नॉर्थ पर कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 50 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 50 किलोमीटर। और फिर मैंने लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की। ठीक है, ये आ गए 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की। ठीक है, ओके हो गया। 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की लाइन भी ड्रॉ कर लिया हमने। तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, पहले तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे इसकी, कि डायरेक्शन इसकी कहाँ जा रही है, ऊपर। और 5 किलोमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 50 किलोमीटर। ओके हो गया। यहाँ तक का काम करने का आपको मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि आपने क्या करना है, ड्रॉ करनी है जर्नी। जर्नी ड्रॉ करने के लिए आपको रिजल्टेंट भी चाहिए होगा। रिजल्टेंट निकालने के 2 मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकाल रहे हैं और उसको स्केल में रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि भाई लेंथ, ठीक है, ये भी लेंथ कितनी आ रही है भाई, लेट्स सपोज ये आपके पास आ रही है फॉर एग्जांपल कितनी, 10.3 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, 11.3 सेंटीमीटर। तो या तो आप ये कर लें कि आपको पता है भाई कि मेरा 1 सेंटीमीटर, कि मेरा 1 सेंटीमीटर बराबर कितने के है, 10 किलोमीटर के। और मेरे पास ये 11.3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये कितने किलोमीटर के बराबर बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 113 किलोमीटर के बराबर बन जाएगा। कितने के बराबर, 113 किलोमीटर के बराबर बन जाएगा। 113 टू 10, 11.3 इंटू 10। ओके हो गया। In physics, we round off all the answers into two significant figures. तो two significant figures में ये बनेगा 110 किलोमीटर। सही है। दूसरा मेथड बेटे मैथमेटिक्स में हम लगाते हैं pythagoras थ्योरम, जो कि बहुत सही है। I suggest you people to apply the Pythagoras theorem. सर लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं बन रहा होगा तो फिर हम इसी मेथड से करेंगे ना, हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे। क्या नहीं बन रहा होगा, सॉरी, अगर 90 डिग्री नहीं बन रहा होगा। 90 डिग्री के बगैर आपके सिलेबस में क्वेश्चन ही नहीं है। सही है, 90 डिग्री के बगैर ये डायग्राम ड्रॉ करने वाली नहीं आएगी आपके पास। ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, अभी सिलेबस दिखाऊंगा ना आपको, अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, सर लेकिन मुझे तो एक हम जो सवाल था, दो टग बोर्ड्स वाला, वो खींच रही थी बोर्ड को, आई थिंक वो उसमें। वो ड्राइंग नहीं है, वो ऑलरेडी ड्रॉन है, हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, वो भी कैसे सिखाऊंगा अभी। ठीक है, 50 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, और ये लगा दिया क्यूट सा रूट इसके सर के ऊपर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इन द 50 एंड द 100 का स्क्वायर। रूट 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर कितना आ गया, 111.8। अब देखो डिफरेंस तो आ रहा है ना, वहां 113 आ रहा था, या वहां यहाँ 180 कितना है, 108.8, 118, 111.8 सॉरी, 111.8 किलोमीटर तकरीबन। अगर हम राउंड ऑफ भी करेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में बस एक गिलास जो है ना, तो इट विल लुक 110 किलोमीटर जब हम इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में सॉल्व करेंगे। ओके हो गया। दिस इज कॉल्ड अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंडेड ऑफ आंसर देखें तो आपका एग्जैक्ट सेम आएगा। अदरवाइज अगर आप स्केल से मेजर करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। एग्जैक्ट मैच की जरूरत भी नहीं है, दोनों ही जगह सिर्फ और सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए है।
ओके हो गया, गेट बंद कर देना यार, साइड में हटा दो प्यार से। ठीक हो गया, यहां तक रुकेंगे। हमने क्या क्या कर लिया, रिजल्टेंट निकाल लिया, ड्रॉ कर लिया, हमारी डायरेक्शन रह गई, हमने स्केल भी कर लिया। क्या रह गई हमारी, रह गई सर डायरेक्शन रह गई है जरा, डायरेक्शन। तो वो हम कल करेंगे कि उसमें हमें सो का टोआ पढ़ना है, तो आई ट्राई कि पहले मैं मैथ में ये पार्ट रिवाइज करवा दूंगा, तो डायरेक्शन निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, सारी बात। सर मेरा ये सवाल है कि अगर हम लोग दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लिखे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा? यस बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्शन का मामला भी अलग है और इसका मामला भी अलग है। आई सजेस्ट कि कैलकुलेट स्केल से मत करना, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना और सो का टोआ साइन कॉस tan लगा के ही डायरेक्शन निकालना, ताकि आपकी कभी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया, ओके जी बेटा। एनी क्वेश्चन प्लीज? नो क्वेश्चन, चला गुड। तो आज हम अपना लेसन यही कंप्लीट कर रहे हैं और वी आर गोइंग टू टर्न ऑफ द recording right now, and if you need to ask something you can drop your WhatsApp or